गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू रीड योर चैप्टर सेकेंड इन ज्योग्राफी क्लास 8 SST, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। डियर स्टूडेंट, I have discussed about this chapter in my previous video. I will give you some information about resource. I have already give you about the importance of resource, the categories and types of resource, and I have also discussed separately the human resource and natural resource. Your second chapter we will read about natural resource. In the natural resource, one by one we will see the importance of land, soil, water, natural vegetation and wildlife sanctuaries also. And I have, as you watch my previous video, where you have seen that I have discussed two stories, one from Tanzania, Mambas, a little girl, and second from Peter, New Zealand. Their area is different. Their area is different. The land morphology, their demography, that is different. New Zealand, if you try to look about New Zealand, try to see about that, where New Zealand is situated, then you find it is situated in the southern portion of globe, as well as if you will see the Tanzania, which is situated in African continents. Their climatic situation, their physiography, their environment, that was totally changed. Land morphology also. And we have discussed in my previous video the importance of land. Today we are going to read the use of land. What is the use of land? Think क्या क्या हो सकते हैं. लैंड के यूज, जमीन के प्रयोग, इन चीज़ों को आज हम बात करेंगे. हमने बात किया था कि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है. सभी इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. भूपृष्ठ, इट मीन्स जो ऊपरी सतह है जिस पे हम रहते हैं, जिस पे सभी कुछ दिखाई देता है, हम चलते हैं, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29.47%, नियर अबाउट 30%, पृथ्वी का 30% लैंड है और 70% वाटर है. इस लैंड में बहुत वैरायटी है. कुछ डिज़र्ट है, कुछ माउंटेन्स हैं, कुछ प्लेन हैं, कुछ वेटलैंड्स हैं, कुछ हिल हैं, कुछ डिचेज हैं. तो इतनी सारी वैरायटी के साथ 30% जो हमें लैंड का पार्ट मिलता है, उसका यूज हम कैसे करें और कैसे ह्यूमन बीइंग उसका यूज करता है, हम इस चीज़ पे आज बात करेंगे. We will discuss about that matter today. The land use.
Your topic is land use. Today we are going to read about land use. I think I have discussed the land use and I have also discussed about that the various continent and their percentage, कितने कितने ज़मीन पे कितनी कितनी चीज़ें यूज की जा रही हैं. मैंने कहा था लैंड इज़ यूज डिफरेंट पर्पज such as agriculture, forestry, mining, buildings, houses, roads, and this is commonly termed as a land use. Can you list out the different ways in which the Mambas and Peters family use their land? You should remember the previous story which I have discussed. माम्बा क्या करती थी, जमीन माउंटेन्स था, उसकी बहुत मुश्किल से बरली और वीट की खेती कर लेते थे, सेम उगा लेते थे बड़ी मुश्किल से वो लोग. और पीटर के यहाँ हमने देखा कि न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट्स के थोड़ा सा नीचे आपको देखेंगे तो वहाँ मिलेगा आपको, तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ का जो मेजर ऑक्यूपेशंस था वो पीजेंट्री की जगह पास्टोरलिस्ट कल्चर को एक्सेप्ट करते थे. पशुपालन उद्योग, पास्टोरलिस्ट इंडस्ट्री डेवलप थी, पास्टोरलिज्म डेवलप दिख रहा था वहाँ में. भेड़ का पालन, ऊन निकालना, ऊन को बेचना, फैक्ट्री में ले जाना, पूरी प्रोसेस हमें दिखाई दी. उन्होंने अपनी ज़मीन का इस्तेमाल उन्होंने भेड़ पालन के लिए किया, तो वहाँ पे उन लोगों ने छोटे मोटे खेती के लिए और चारागाह के लिए किया. तो जो अलग अलग जगह पे अलग अलग ज़मीन के अलग अलग उपयोग अगर आप लिस्ट बनाएं तो आपको मिल जाएगा. द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर सच एज ए टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स and availability of water. Human factors such as population and technology are also important determinants of the land use pattern. Without these, we cannot imagine the use of land. These are all factors which directly or indirectly play very important role in land use. जमीन के उपयोग में ये सारी चीज़ों की जिसे मैंने बात की कि फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फैक्टर्स हों, उनकी टोपोग्राफी उपयुक्त हो, उनकी मिट्टी अच्छी हो, जलवायु अच्छा हो, वहाँ पे मिनरल्स मिले, पानी की सुविधा रहे, और फिर साथ साथ मानव का मस्तिष्क और तकनीकी का प्रयोग करके वो इस ज़मीन को सही तरीके से उपयोग कर सकता है, तभी उस ज़मीन का सही उपयोग हो सकता है. मैंने आपको डाटास के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया था. इफ यू विल सी द डाटा देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट दैट द यूज ऑफ लैंड एंड हाउ मेनी लैंड्स यूज बाय विच पर्पज इन द वेरियस कंट्रीज. अकॉर्डिंग टू दिस डाटास you can easily understand. Land can also be divided on the basis of private land and community land. Land can also divided on the basis of private land and community land. Private land is owned by individuals, whereas the community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts, medicinal herbs. These community lands are also called the common property resource. लैंड को, जमीन को दो तरीके से बांटा गया. उपयोग के आधार पे कह रहा इन चीजों को अगर ध्यान दें तो निजी भूमि और सामुदायिक भूमि, मतलब इट मीन्स कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कम्युनिटी लैंड, लैंड प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, एक समूह की ज़मीन पर अधिकार और एक व्यक्ति का अधिकार, दो तरीके की ज़मीन के डिवाइडेशंस किए जा सकते हैं.
और सामान्य रूप से इसका उपयोग भी अलग अलग है। एक व्यक्ति विशेष अपने लिए करेगा, जबकि समुदाय के लिए बड़े काम को किया जाएगा, जैसे प्लांटेशन, एग्रीकल्चर के लिए, जैसे बड़े बड़े बाग लगाने में। इसे आपके बुक में दिया है, देखिए इस चीज़ों को ध्यान दीजिए। कह रहे द कलेक्शन ऑफ फूडर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, these community lands are also called the common property resource. People and their demand are ever growing, but the availability of land limited. The quality of land also differs from place to place. People started encouraging the common land to build up the commercial areas, housing complex in the urban area, and expand the agricultural land in the rural areas. Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification, and the major threats of the environments because of the expansion of agriculture and constructional activities. Resource. Therefore, the present rate of degradation of land resource must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical, pesticides, and the fertilizers, and check on the overgrazing are some of the common methods used to conserve land. In this paragraph, author want to introduce you about that land use. It used the various way. author कहना चाहता है कि जनसंख्या और उसकी मांग, डिमांड ऑफ द लैंड डे बाई डे बढ़ रही है। भूमि की उपलब्धता, भूमि लैंड का पार्ट तो सीमित है। पॉपुलेशन बढ़ सकती है, जनसंख्या बढ़ सकती है, जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है, लेकिन ज़मीन में वृद्धि नहीं हो सकती। ज़मीन तो उतनी फिक्स है, लैंड तो फिक्स है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। हर जगह की ज़मीन एक तरह उपजाऊ नहीं होती, एक समान उपयोगी नहीं होती। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने में इंटरफेरेंस शुरू हो गया। आपने देखा होगा अब सिटी मॉल गांव में भी खुलने लगे, बड़े बड़े कस्बों में बड़े बड़े मॉल्स खुलने लगे। खेती की ज़मीन कम होने लगी, लोग खेतों में घर बना के रहना शुरू कर दिए, खेतों का प्लाटिंग कर दी गई। दैट इज द इनकॉर्पमेंट ऑफ द लैंड। इट वॉज यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस, एक दूसरे लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। आज वो बदल गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए लोगों ने अनधिकृत हस्तक्षेप शुरू कर दिया। आज भूमि उपयोग के प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन आ गया। हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं ये बदलाव। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, मरुस्थलीकरण, डिजर्टेशंस और पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बने हुए हैं। डिफॉरेस्टेशन भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है।
आज मानव ने अपनी आवश्यकताएं इतनी बढ़ा ली कि बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, वो बड़े पैमाने पे डिजर्टेशन को बढ़ावा दे रहा है, खेती की जमीन को खत्म करके प्लाटिंग करना शुरू कर दिया, जिससे लैंडस्लाइडिंग, जिससे सॉइल इरोजन बड़े पैमाने पे होने लगी। तो ये रीजन्स बने। लैंड के मिसयूज के, लैंड डिग्रेडेशन के। अब हम बात करेंगे उन चीज़ों पे। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स के पहले, अगर आप कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स की बात करें तो हमने कहा कि ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड ट्रेड and arable land, and has created a fear of losing this natural resource. Therefore, the present rate of the degradation of the land resource must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and the fertiles, and check on the overgrazing area, some of the common methods used to conserve land. बढ़ती जनसंख्या, उसकी बढ़ती मांग के कारण जंगल की जमीन, कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। जंगलों को काट के खेतों को बढ़ाया गया और फिर खेतों में ही प्लाटिंग करके अपने रहने की व्यवस्था कर दी गई, जिससे प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स के समाप्त होने का एक डर पैदा हो गया, खतरा पैदा। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। किस तरह की परिस्थितियां न हो, लोग जंगलों को न काटें, वनारोपण, भूमि के विकास की बात, रासायनिक, कीटनाशक और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा उनके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फसलों को उत्पादन करने के लिए किसानों के द्वारा इस्तेमाल करना, इन सब पर रोक लगा करके भूमि संरक्षण के लिए, भूमि की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं। अभी हमने कई सारी बात की। आई हैव डिस्कस अबाउट लैंडस्लाइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंडस्लाइड एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ द मिटिगेशन मैकेनिज्म। आप इन चीज़ों को देखिए। वी विल डिस्कस ओनली वन, लैंडस्लाइड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लैंडस्लाइड्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। लैंडस्लाइड से क्या समझते हैं? लैंडस्लाइड का मतलब होता है कि एक बड़ा जमीन का टुकड़ा अपनी जगह से विस्थापित हो जाए, हट जाए। पहाड़ों पे ये प्रायः दिखता रहता है। जब भूस्खलन, जिसको लैंडस्लाइड्स बोलते हैं, सामान्य रूप से सैल या पर्वतों का जो मलबा होता है वो ढाल पे गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया गया है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा से भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइडिंग होती है, यह नदी के प्रवाह को कुछ समय तक के लिए अवरुद्ध कर देता है। और नदी की जब प्रवाह अवरुद्ध होती है तो अचानक फूट पड़ने के लिए निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। और पहाड़ी भूभाग भूस्खलन का एक मुख्य विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्रायः जनजीवन, संपत्ति, आवास और मानव जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता है। लैंडस्लाइडिंग का सबसे विभत्स रूप हमें उत्तराखंड में दिखा। चमोली, केदारनाथ। आप अपने घर में मम्मी पापा से पूछिए, केदारनाथ रास्ते, केदारनाथ में लैंडस्लाइडिंग कैसे हुई थी, आपको वहाँ बताया जाएगा। लैंडस्लाइडिंग आर द सिंपली डिफाइंड एज द
mass movement of rock, debris of or earth down a slope. They often take place in conjugation with earthquakes, flood, and volcanoes. A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. The formation of river block can causes have to settlements downstream on its bursting in the hilly terrain. Landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy the position of major concern. लैंडस्लाइड कितना नुकसान है, इसको नेचुरल डिजास्टर के रूप में एक्सेप्ट किया गया, एक बड़ी त्रासदी के रूप में इसे माना गया और इससे एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। नीचे एक केस स्टडी है, आपको उसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। केस स्टडी में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सॉइल। सॉइल, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल? मिट्टी। आई थिंक एवरीवन अवेयर ऑफ दैट द मीनिंग ऑफ सॉइल। मिट्टी किसे कहते हैं? आपने अपने घर के चारों तरफ मिट्टियों को देखा होगा। आप जिस पे चलते हैं किस रंग की मिट्टी है आप इसको नोटिस करिए। फिर मिट्टी के क्वालिटी पे बात करेंगे। अब सॉइल पे बात करते हैं। व्हाट इज सॉइल? मिट्टी क्या है? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to land. Landforms determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals, and weathered rock found on the earth. This happens through the process of weathering. This right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. It means एकदम सिंपली अगर हम समझें, सामान्य भाषा में समझें कि सॉइल किसे कहते हैं, मिट्टी क्या है, तो पृथ्वी के ऊपरी भाग, ऊपरी लेयर को जो छोटे छोटे कणों से ढका हुआ है, एक पतली जो परत है वो मिट्टी या मृदा कहलाती है। यह भूमि से बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। स्थल रूप में मृदा के प्रकार निर्धारित करते हैं। जैसा स्थल होगा वैसी मिट्टी होगी, जैसा जलवायु होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी मिट्टी होगी। इट मीन्स सॉइल इफेक्टेड ऑन क्लाइमेट। सॉइल इफेक्टेड बाय क्लाइमेट आल्सो। जलवायु पर प्रभावित होता है, जलवायु से प्रभावित होता है, दोनों चीजें इस पे कारक होती है। अब मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? कहता है मिट्टी का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों से होता है। मिट्टी कैसे बनती है? इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। कहता है लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं? लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल इज मेड अप द ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि ये चीका सी मुलायम और पत्थर सी कठोर होती है। काली मिट्टी को यदि हाथ में आपने देखा होगा, यदि जो लोग महाराष्ट्र में रहे होंगे या जो लोग दक्कन के एरिया में रहे होंगे तो उनको काली मिट्टी से वो परिचित होंगे। दे वर फेमिलियर विद द ब्लैक सॉइल्स। ब्लैक सॉइल्स की क्वालिटी होती है, अगर वो पानी में रहा तो एकदम गीला होगा, मड की तरह से, लेकिन अगर सूख गया
तो कंकड़ पत्थर की तरह होगा, वो चला के अगर उसे मार देंगे तो किसी का सर फट जाएगा। इनमें कितनी मुलायम है, चीका की तरह, और कितनी कठोर है, स्टोन के लायक। तो कह रहा है मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो कहता है मिट्टी के निर्माण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कहता है मिट्टी ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल्स से और पत्थरों के या रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। जलवायु का प्रभाव होता है इसमें बनने में। इसमें जलवायु, मौसम का बड़ा अंत प्रभाव पड़ता है मिट्टी के बनने में। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक मेक द सॉइल फर्टाइल। अगर प्रॉपर मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर से मिल जाए तो मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। आपके एक पिक दिया गया है, कार्टून बनाई गई है, जिसमें मिट्टी के प्रकार बताए गए हैं। टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, सबसे ऊपरी मिट्टी जिसमें आप ग्रीन ग्रीन कलर कर देख रहे होंगे। सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, जो बीच के देखते होंगे, जो आपको कुछ गुलाबी कलर का दिख रहा है। एंड वेदर्ड रॉक मटेरियल्स, येलो कलर का दिख रहा है। एंड द पेरेंट रॉक, जो बेसिक रॉक है, वो दिख रही है। फिर देखिए एक स्टेप बाय स्टेप डेवलप हो रहा है। पहले पैटर्नल रॉक्स, फिर वेदर्ड रॉक मटेरियल्स, फिर सब सॉइल विथ सिल्ट एंड क्ले, और फिर टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना हुआ जो सॉइल होती है, जो रिवर अपने फ्लो के साथ बहा के लाती है, उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वो मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। और फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, वी विल रीड द फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। हमने देखा कि मिट्टी कैसे बनती है, और हमने ये देखा कि मिट्टी के निर्माण में किन किन चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने इस वीडियो में इन चीज़ों को समझने का प्रयास किया। हमने कहा कि मिट्टी के निर्माण में वो सारी चीज़ें, जैसे मिट्टी के बनने में पत्थरों के टुकड़े, मिट्टी के बनने में तमाम सारे खनिज पदार्थ, मिट्टी के बनने में पेड़ पौधे की पत्तियाँ, इन सारी चीज़ों को मिल करके बाहरी आवरण से जो चीज़ें मिलती हैं, घास फूस, सूखे पत्ते, पेड़ पौधों के टहनियों से, और तमाम सारे जैविक और अजैविक पदार्थों के सड़ने गलने से मिट्टियों का निर्माण होता है। इस निर्माण में बदलते हुए मौसम का बड़ा प्रभाव होता है। जो जलवायु है, जो वहाँ का पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर है, वो भी मिट्टी के बनने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कैसे बनेगी फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में, इन चीज़ों पे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।